Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And in this episode, where we are picking up General Studies Paper 2 questions, our goal is to understand the nuances and to link them with the present circumstances and context. We are going to change and we will try to see the question in the present circumstances so that we are able to handle the demand. So, this question is from 2014. The proposed withdrawal of International Security Assistance Force from Afghanistan in 2014 is fraught with major security implications for the countries of the region. Today, Taliban is ruling it. So we have to see the second part, examine the light of the fact India is faced with plethora of challenges and need to safeguard its own strategic interests. We have to see in the present circumstances. So we will try to see that. India-Afghan relations have been peace-centric and constructive in nature, as reflected from India being one of the largest contributors to the peacekeeping forces. And not just that, peacekeeping forces and infrastructure projects. Even we have been doing number of infrastructure projects over there, Salma Dam, and then uh, Afghanistan. In Afghanistan, we have done Parliament of Afghanistan. We have done hospitals. We have run a couple of other institutions. We give training to officers and so forth. So the Afghan Taliban led to toppling of the politically elected government after withdrawal of military forces. Fine, politically elected is what is okay, but then that's fine. India's strategic interest. India has always stood by the debate and discussion as the best measure over use of violence and force in order to solve differences. You must always write the complete sentence. Although India had not removed Taliban government, but developmental aid still focused. So we have not recognized now. We have started officially and diplomatically. Now we are in touch. We are Mm. now. You can't say that not. We have to be very careful about the word we are using. Reconstruction of the parliament building, as you said, it's and security of the region to bypass Pakistan and regional connectivity. The point number 4 is very important. क्योंकि वो जो प्लेथरा ऑफ चैलेंजेस बोल रहे हैं तो उसमें आप टू टाइप की बात करिए शुरू से, जैसे जीरो टॉलरेंस फॉर and then this infrastructure projects, everything is wonderful, but the question says in the second part कि प्लेथरा ऑफ चैलेंजेस हैं, अपने इंटरेस्ट को हम कैसे सेफ गार्ड करें. तो आप अफगानिस्तान हमारे लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारे लिए मीडियम भी है, दोनों चीजें हैं. होल सेंट्रल Mm. एशिया हमारे लिए लिंक है उसके साथ. और पाकिस्तान को कंटेन करने का भी एक पॉइंट आपको लेके आना पड़ेगा. एक पॉइंट ये भी लेके आना पड़ेगा कि हाउ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म विच वी स्पीक अबाउट एंड वी वांट पाकिस्तान टू बी हाईलाइटेड, उसमें भी अफगानिस्तान हमारा सपोर्टर है. तो जी. अफगानिस्तान के बाद ही ईरान आ जाता है सीधा. आप समझे. Mm. तो ये आपको बात वहां से लेके आनी पड़ेगी कि भाई कैसे. प्लेथरा ऑफ चैलेंजेस यही है कि एक तो इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया है, दूसरा इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, समझे आप. और Mm. तीसरा वही बात है कि एक चैनल है हमारे लिए, जब जब हमारे पोर्ट से सामान जाता है तो वो जी. कैसे जाएगा, हाउ एट द लो कॉस्ट वी आर एबल टू हम कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सेंट्रल एशिया के लिए और ज्यादा एक मेन स्ट्रीम तरीके से फैसिलिटेट करें, ये आपके लिए ये यहाँ बहुत जरूरी है. बाकी जो कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप है वो भी इस रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं लिंक्ड और डिपेंड करता है. जी सर. एक दो फैक्ट्स आगे बस, बाकी ठीक है, बाकी तो कुछ ऐसा वो नहीं है. The back channels continues to uphold the basic human rights as stated in Geneva Convention in Afghanistan and restoration of democracy. अब ये बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँ, इंडिया ने किसी फोरम में ये नहीं बोला है कि तालिबान नहीं होना चाहिए या तालिबान जो है वो टेररिज्म है और वहां पे इलेक्ट्रोली या फिर वहां पर जो है पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए. इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं बोला है. जी. इंडिया नेवर स्पीक्स, इवन इंडिया ने म्यांमार के लिए भी डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं बोला कि मिलिट्री जनता हट जाए और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए. इंडिया हमेशा कहता है कि विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू एनीवन्स डेमोक्रेटिक एनीवन्स इंटरनल इंटरेस्ट, वी वांट पीस, वी वांट सिटीजंस वेलफेयर. तो हाँ हम जी नहीं सर. बोलेंगे तालिबान रूल करे करे, लेकिन तालिबान जब बच्चों को पढ़ने नहीं देगा, लड़कियों के साथ गलत होगा और कंजर्वेटिव जब बहुत ज्यादा चीजें और बैकवर्ड होगा ना, तो इंडिया फिर इतना कह सकता है कि अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, अपहोल्ड डिग्निटी, अपहोल्ड इंडिया, ऐसे कहेगा. तो ये जो हम्म. हमने लास्ट पॉइंट डाला कि भाई हम जो है हाँ. मतलब रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी अपनी डेमोक्रेसी, हमारी नहीं है. उनका अपना वे हम्म. है, म्यांमार का अपना है. तो मिलिट्री जनता का हमें नुकसान है क्योंकि मिलिट्री जनता को चाइना ने इतना सपोर्ट किया, पूरे वर्ल्ड ने उसको कट ऑफ कर दिया, चाइना की मौज हो गई. सारा हम्म. रेयर अर्थ मेटल वहां से माइन होके चाइना जा रहा है. हम्म. कुछ एरिया ऑटोनोमस रीजन है विच आर इन अंडर कंट्रोल ऑफ एंटी मिलिट्री या फिर प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस. तो शब्दों का बहुत रोल है. तो आप कहिए कि इंडिया ने तो मतलब एज अ नॉट ओनली जस्ट अ नेबर, पर एक यूनाइटेड नेशन फोरम, यूनाइटेड नेशन का मेंबर होने के नाते भी और हिस्टोरिक टाइज भी हैं अफगानिस्तान के साथ. हमने तो हर तरह की मदद दी है, घर बनाए हैं और हमने पार्लियामेंट बना दी, हमने यू नो
एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, बात आप समझ रहे हैं। जी वहां सर। से वहां से भी चीजें आती हैं हमारे यहाँ, ड्राई फ्रूट्स है, बाकी चीजें हैं। और हमने अफगान रिफ्यूजीज को भी सपोर्ट किया है हमने, हम्म, हिंदुस्तान में वो भी है। और फिर सेंट्रल एशिया को जोड़िए उससे, चाबहार पोर्ट को जोड़िए उससे, ठीक है। जी। हाँ ऐसे जी सर। होगा। चलिए, what do you understand by the string of pearls? How does it impact India? Briefly outline the steps taken by India to counter this. The string of pearls theory is a geostrategic policy of China to increase its military influence in the Indonesian region via several, covert measures, thereby surrounding India. String of pearls हम्म, मतलब मोतियों की जंजीर, एक तरीके से, ठीक है। हम्म, लाइक ए नेकलेस, हम्म, जैसा आपने बोला, सीपीएसी है, आपने बोला डियागो गार्शिया बोल दिया, वेरी गुड, आई थिंक वेरी वेल ड्रॉन, बहुत अच्छा है ये, बड़ा थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। तो इंडिया के लिए ऊपर इम्पैक्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड वायलेशन ऑफ इंडिया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा पॉइंट, अमेजिंग पॉइंट पहला। वर्ल्ड 80% सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पास थ्रू as per WTO passes through Indian Ocean region and Pacific Island. What if China blocks Malacca Strait? Very good flow. Investing on Kara Canal project in Thailand. Exploitation of deep sea floor with rare earth like polymetallic nodules, 10% of which can produce 100 years power supply. India is spearheading deep ocean mission following rule based order. बिल्कुल सही कहा। Other measures like strengthening the role of BIMSTEC, इंडियन ओशियन, इंडिया कर रहा है। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये इंडिया कर रहा है, लेकिन आप ऊपर बोल सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स में हम्बन टोटा पोर्ट, वहां पे इसने बात कर ली। अब चिट्टगांव हम्म, पोर्ट में अंदर माल लगाने की बात कर रहा है। फिर उसके हम्म। बाद म्यांमार का सितवे पोर्ट में बात कर रहा है। और वहां से आपने गवादर पोर्ट कर दिया। मैंने हाँ, लिख दिया, तो उसको मैं अगर फिर से तो कोई पॉइंट्स में लिखूंगी, ये नहीं, मेरे पॉइंट में माइंड में। सिर्फ लिखने, पॉइंट में फिर मत लिखिए, लेकिन आप बताइए तो, मतलब कुछ, मतलब जैसे आप बिम्स्टेक, मतलब आप इतनी सारी ऊपर आप जब लिख के आ गए, मतलब एक हम्म, मतलब मैं कैसे बोलूं, बात तो ठीक है, मलक्का स्टेट पोर्ट हो गया, सितवे हो गया, लेकिन ऐसे करके देखेगा नहीं एग्जाम, वो दिख गया एक बार, दिख गया बस, ठीक है। वो दिख हाँ। गया, कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है तो आप लिख भी सकते हो, ऐसे करके लिख दो जी। कि, या आप लिख दो कि अगर सितवे पोर्ट पे ये है तो इंडिया का, वो जो हमारा ऑल्टरनेटिव। हाईवे है, जो हाईवे बन रहा है हम्ँ। कलकत्ता से काला दान लेकर, और करके हो। हाँ, हाँ। कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, और वो आपके उसके, तो मतलब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो आपको प्लेसिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, मतलब हम्म। एक बात कहाँ बता रहे हो ये भी पता होना चाहिए, और वो फ्लो में कहाँ आ रही है ये भी पता होना चाहिए। हाँ जी। लिख देता है आदमी, पता भी है, लेकिन वो सामने आनी चाहिए ना वैसे, हाँ। तो ये बात है। आई थिंक इट इज ऑल्सो वेल अटेम्प्टेड एंड इन बेसिक लाइन सर्टेन always answer is never complete, but then what it is trying to showcase, that is important. Economic ties between India and Japan, while growing in the recent years, are still below their potential. Elucidate the policy constraints which are inhibiting the growth. पॉलिसी कंस्ट्रेंट पे बात कर रहा है, पहले बात तो कह रहा है इकोनॉमिक टाइम्स पे आप बात करो। स्ट्रेटेजिक एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस, नॉट सिंस कॉलोनियल टाइम्स, सिंस एशियन टाइम्स, एक तरीके से बुद्धिज्म भी पहुंचा ना वहां पे। हम्म। तो आप तो कॉलोनियल टाइम्स तो आपने मतलब ये जापानी पढ़ लेंगे तो पगला जाएंगे। वैसे क्लोज इकोनॉमी है मॉडर्न टाइम में, लेकिन हमारे तो कुछ ना कुछ तो गए ही हैं। हाँ। भाई उनके रिलीजन में लॉर्ड बुद्धा के नहीं है सिर्फ, वहां माँ लक्ष्मी भी है, पार्वती भी है, गणेश भी है, तुम बिलीव नहीं करोगी। हाँ जी। ये सारे गॉड भी हैं, ये सारे गॉड हम्म, उनके अपने नाम है, उनके नाम कुछ और हमारा कुछ और, बहुत सारी चीजें सिमिलर है। वो भी धूप बत्ती जलाते हैं, वो भी अगरबत्ती जलाते हैं। आई हैव हाँ। सीन शिंटो श्राइन जो होते हैं वो एक मंदिर की तरह होते हैं, बस हमारी तरह कलरफुल नहीं होते, हाँ जी। पत्थर के बने होते हैं ऐसे बड़े बड़े श्राइन्स। हम्म। और बस थोड़े से, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल प्लेस है। आई विल शो फोटोग्राफ्स आल्सो समटाइम। जी तो सर। आपको बात देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ले आइए आप, ठीक है। आपने इकोनॉमिक टाइम्स में जायका, सीपा, बुलेट ट्रेन, एफडीआई, टूरिज्म सब बता दिया, बहुत बढ़िया, ये अच्छा किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड ब्लॉक्स, क्योंकि वो पूछ रहा था एकदम, अब रोड ब्लॉक्स क्या है? रेगुलेटरी हर्डल्स, कंप्लायंस बर्डन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट लाइक बुलेट ट्रेन। अब उसके पीछे जाइए कि सबसे पहला ये है कि भाई मतलब रेगुलेटरी हर्डल तो हमारे हाथ में ही है ना, तो आप ये कहिए सबसे पहले, तो सबसे पहला क्या है कि जापान एक नॉन न्यूक्लियर पैसिफिक स्टेट है आज की डेट में। हम्म। इंडिया और जापान की जब आइडियोलॉजी की बात आती है, तो जापान जब जब हम जब न्यूक्लियर टेस्ट हमने किए थे, या हम जब न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने की बात करते हैं, सिविल न्यूक्लियर तो उनके पास भी है, लेकिन मिलिट्री वाला जो एंगल है, जी। इस पे इंडिया और जापान मतलब कभी एक नहीं है, एक आप भी कह सकते हो।
पहला हम्म हर्डल है, एक रोड ब्लॉक है कि हम कैसे जापान को बताएं कि हम पीसफुल एंड नॉन प्रोलिफरेशन पावर हैं। ठीक है ना। हम्म। जी सर। दूसरा पॉइंट आप रेगुलेटरी हर्डल में कहोगे कि जापान जो है मतलब वही बात है कि जापान को अब हम क्या एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। हम्म बात समझे। अब आपने टेक्नोलॉजी ले ली जापान की, आपने जापान का फाइनेंशियल एड ले ली, फाइनेंशियल आपने लोन ले लिया, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? जी। बराबर नहीं हुआ ना, इम्बैलेंस है वो एक तरीके से। दूसरे पॉइंट उसको एड्रेस करना चाहिए। अब इंडियन जा रहे हैं, आईटी सेक्टर जा रहा है, जापान इज एन एजिंग पॉपुलेशन। दूसरा, हम्म जैसे अब आपने बोला जापान इज ऑक्यूपाइड विद सिक्योरिटी कंसर्न इन इंडो पैसिफिक विद चाइना लाइक होकाइडो आइलैंड क्लेम्स बाइट। होकाइडो है कि होकाइडो नहीं है, वो नाम है उसका, डिस्प्यूटेड सेन आइलैंड काकू है। है, हाँ, सेन काकू। सेनकाकू, करेक्ट करेक्ट, हाँ। समझे। तो अब जैसे, अब जैसे वो, लेकिन वो तो रशिया और जापान के बीच में है बेसिकली। तो जापान जी। उससे ऑक्यूपाइड नहीं है। इंडिया और जापान की आप ये बात करो कि इंडिया और जापान की आप पहली बात करो कि हर्डल तो पहली बात यही है। पहली बात तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बहुत। अभी तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे हो सकती है जब जो पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिया की और जापान की है उनके बीच में बोनहोमी हो, उनके बीच में अच्छा वो हो, पहली बात। दूसरा, दूसरा ये भी है कि जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस तो मतलब दोनों कंट्रीज अपना अपना फेस कर ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन इफ यू गो बैक एंड हैव अ लुक, क्वेश्चन इज टॉकिंग दैट हाउ, मतलब कि पहली बात तो इकोनॉमिक बता दीजिए क्वेश्चन में, कैन यू हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। और वो कह रहा है साथ में कि इलुस्ट्रेट द पॉलिसी कंस्ट्रेंट, है ना। हम्म। एक पॉलिसी कंस्ट्रेंट वही है, जापान नॉन न्यूक्लियर है, ये पहला पॉलिसी है उनका, ये हमारे लिए हाँ जी। कंस्ट्रेंट होगी। दूसरा कंस्ट्रेंट है, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप क्या दे रहे हो, आप क्या एक्सपोर्ट करोगे जापान को एज अ हम्म। पॉलिसी मेजर में। ठीक है। तो हाँ जी सर। ये ग्रोथ को इनिबिट करने में। तीसरा, जापान का जो लॉन्ग टर्म विजन है, क्या वो इंडिया के विजन से भी अलाइन होता है? हम्म। जापान इंडिया की मदद करता है क्योंकि चाइना एंड जापान के रिलेशन, दे आर, दे आर फुल ऑफ व्हाट आई शुड से, स्कार्स हैं चाइना में जापान के नाम के, इंपीरियल टाइम पे जो जापानीज ने किया है। हम्म। तो इंडिया फिर एक ऑप्शन रह जाता है जापान के लिए। हाँ जी। ऐसे ही जापान और इंडिया मिलके अफ्रीका में, अफ्रीका के लिए, जैसा ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ऐसे ही वो अफ्रीका के लिए एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। हम्म। फिर उसके बाद इंडिया और जापान, आप सोचो और कहाँ कोऑपरेट कर सकते हैं, वो वाली बात है। और फिर पॉपुलेशन का तो मैंने आपको बताया ही है, वो भी एक पॉलिसी कंस्ट्रेंट का पार्ट आ जाता है। हाँ जी। तो लेकिन अब आप पॉजिटिव की तरफ लेके जाओगे कि कितना गजब, कितना डीपली, मतलब हम वो हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं एक साथ, और यूनाइटेड नेशंस की हमारी जो परमानेंट सीट की बात है उसके लिए हैं। और उसके बाद हम्म। इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्लाइमेट चेंज के लिए है। उसके बाद जो है कल्चरल, अब तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत अच्छा बढ़ रहा है पिछले 10 सालों में। जी पोस्ट सर। कोविड, अगर आज आप जापान जाना चाहें, अगर हम आज जापान जाएं, तो हमें वहाँ हम्म। इंडिया से जापान के टूर भी मिल जाते हैं। जब मैं जापान ओ। गया था तो कोई टूर कुछ नहीं होता था, हम्म। और आपको इंग्लिश का एक साइन नहीं मिलेगा कहीं पर भी। जब जापान ने जी। एक बार ओलंपिक्स होस्ट किया तब हो गया, मेट्रो, टॉयलेट ये अंग्रेजी में लिख के मिलेंगे, नहीं तो आपको एक शब्द भी पूरे टोक्यो में अगर आपको अंग्रेजी में मिल जाए तो बात है, सब कुछ जापानीज में ही होगा। वर्ल्ड की मोस्ट महंगी और मोस्ट एडवांस स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट जिसे न्यूयॉर्क कहते हैं, जैसे टोक्यो इज वन जी। ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। हम्म। तो थोड़ा सा वो वाला लेके आना है, और पॉलिसी में आइए, पॉलिसी में देख लेते हैं। और अगर आप बात करें पॉलिसी में, तो हमें वही पोटेंशियल एरियाज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल ऑफ जापान एंड डीपीआई ऑफ इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो नेटवर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिल्कुल डिजास्टर मैनेजमेंट में है, न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर पावर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और एक दो पॉइंट जैसे आ सकते हैं, जैसे आपने सीडीआरआई का बता दिया। तो आई थिंक इंडिया जापान जो रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत स्ट्रैटेजिक है बेसिकली। उसके लिए स्ट्रैटेजिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हो इंडिया जापान स्ट्रैटेजिक से, अगर मतलब अब तो प्रेजेंट गवर्नमेंट इज रियली, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। तो इंडिया जी सर। जापान की, उसको अब तो कुछ और नाम बोलते हैं शायद, हम उसको बोलते हैं स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। हाँ जी। आज की हम्म। में जापान के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको कहते हैं स्पेशल
स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो हिस्टोरिकल आपने एक बोल दिया, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस वही चाइना को लेके जो आपने एक बात बोली, और इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेके आपने बोली सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने किया, तो उसी हम्म। को आप बढ़ाने की बात करो। और जापान के साथ जो हमारे ग्लोबल कोऑपरेशन की बात है वो है पीपल टू पीपल हो गया। तो आई थिंक इतना अगर हम बता दें, और जी। इकोनॉमिक रिलेशंस और मिलिट्री रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, तो मिलिट्री रिलेशंस में आप बोल सकते हो कि इंडिया जापान जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, है ना। जापान मेरीटाइम, जापान में जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हैं, वो मालाबार नाम है शायद उसका, मालाबार एक्सरसाइज हमने पीटी के लिए पढ़ा था ना। तो सर क्वाड मालाबार, में। हाँ मालाबार करते हैं, तो बस इतना काफी है। और हम्म। न्यूक्लियर डील तो मतलब है ही, न्यूक्लियर डील भी हमने जी। साइन की है उस तरीके से, और इंडो पैसिफिक के लिए भी हम तैयार हैं। तो आपको बस थोड़ा सा जो पता है उसी को थोड़ा सा बस आपको आगे 2047 तक का जोड़ के करना है, और जी। बस हो गया। आई थिंक दैट्स इनफ। हम्म। सिग्निफिकेंस बहुत है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की, इवॉल्व सिंस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और हमने कोशिश की डेमोक्रेटिक, कॉर्डियल और म्यूचुअल बेनिफिशियल, गाइडेड बाय द विजन ऑफ गांधी जी। बिल्कुल ठीक बात है। गांधी जी की इंदिरा गांधी? सर मैंने वो जानबूझ के लिखा नहीं। नहीं तो इंदिरा गांधी तो आप लिख सकते हो, था ही वो इंदिरा गांधी, उन्होंने ही किया है। इंदिरा हम्म। गांधी ही लिखा जाएगा, कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी, जियो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड रेलवे लाइन टू अक्वा अगरतला प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट टू डेवलप लॉजिस्टिक मॉडल, नॉर्थ ईस्ट की पोरस बॉर्डर लीड्स टू चैलेंजेस ऑफ काउ स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेंट्स, रोहिंग्या, recent toppling of the government and anti-Hindu protests and killing the three-state deadlock. सही बात है, India has banned transshipment services to Bangladesh, not because of this government, but because of the losses and because of the the हाँ जी। discriminatory attitude practiced by it. हम्म। Accelerated textile mission modernization हमने किया है, वो सब बैंड, बैंड नहीं किया हमने जूट के इंपोर्ट को, हमने सरकमवेंट किया है ना, क्या तो बैन आया था, बैन हुआ है। बैन है जूट, अच्छा। हम्म। हाँ कुछ जूट में प्राइमरी कुछ तो बैन किया है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, जूट का Alternative बैन। connectivity आपने बता दी, revival of relations, not to create a second SAARC BIMSTEC DK like India Pakistan, dedicated terror have reduced relations. I think बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे हैं आईआर के फर्स्ट टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, they are a जी। very good insight into someone who wants to understand how the process goes on. I think इससे ऊपर ही जाएगा, तो I think fair enough. अब मोतियों की माला चीन द्वारा निर्मित एक भू राजनीतिक नीति है जिसके आधार पर अपने प्रभाव और दबाव बढ़ाने के लिए समुद्री मार्गों पर सैन्य ठिकानों का निर्माण कर व्यापार, अपना प्रभाव और अधिकार क्षेत्र बनाना चाहता है। तो पूरे पैराग्राफ को एक सेंटेंस नहीं बनाना है, छोटे छोटे सेंटेंस तोड़ने हैं, जैसा हमने इंग्लिश में बात की। म्यांमार, श्रीलंका, हम्बन टोटा, गावादर, ठीक बात है। भारत पर प्रभाव, सुरक्षा, हिंद महासागर, व्यापार मार्ग बाधित होने की, पड़ोसी देशों में अस्थिरता, क्षेत्रीय प्रभाव, भारत की तटीय रेखा की सुरक्षा, निवेश आकर्षण, बुनियादी ढांचे के प्रभाव से सुरक्षा। आई थिंक गुड पॉइंट, जैसा हमने इंग्लिश में बोला। भारत की राष्ट्रीय हित, समुद्री सुरक्षा। उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी इज अ वेरी गुड पॉइंट, जिसके तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक संबंध हम मजबूत कर सकते हैं। क्वाड हो गया, गुड, आई थिंक वेरी गुड पॉइंट्स, नॉट एन इशू, वी कैन मूव ऑन। फिर अगर हम बात करते हैं भारत जापान की, तो आर्थिक संबंधों की नीति में परिवर्तन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत अच्छी बात है, उच्च टैरिफ, गैर टैरिफ समझौते, बिल्कुल ठीक बात है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए जापान को शामिल किया गया। क्वाड हो गया आपने, बौद्धिक संपदा, वेरी गुड पॉइंट, बौद्धिक संपदा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जलवायु प्रतिरोधी संरचना, ये भी आपने बहुत मतलब खुद ही सोच के भी लिख दिया, तो आई थिंक वंडरफुल। जापान की घटती जनसंख्या, कौशल, बिल्कुल सही बात है, इंडिया चाहता है उनको वो करे। तो आई थिंक इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। एक दो तीन पॉइंट्स हैं जनरल वाले जो हम आइडिया लगा सकते हैं, ये तो बात हुई होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, या एक दो पॉइंट्स और हो गए। शाहबाग स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने कट्टरवादी इस्लामिक और राजनीतिक सोच में परिवर्तन किया। परिणाम स्वरूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अस्थिरता बांग्लादेश में उत्पन्न हुई। अशांति के कारण भारत बांग्लादेश सीमा रेखा पर भी सांप्रदायिकता देखने को मिली। आई थिंक वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स भी इसमें लेके आ गए। वो हुआ ही था बॉर्डर के ऊपर, अगरतला में भी हुआ था पंगा, त्रिपुरा में भी पंगा हुआ था। तो भारतीय सीमा पर प्रभाव पड़ा, द्विपक्षीय संबंधों में बाधा आई, भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की रक्षा, मानव अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत की नीति, लेकिन हम वहां जा नहीं रहे। श्रीलंका वाला शायद इंग्लिश में हमने अभी नहीं किया है, तो देख लेते हैं। हम्म। लेकिन श्रीलंका की अगर बात है, तो श्रीलंका भारत सांस्कृतिक प्राचीन इतिहास 2000 साल से ज्यादा का है। सांस्कृतिक जुड़ाव, प्राचीन साम्राज्य, पारंपरिक आयत, मत्स्य पालन, जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह कहाँ से हो गए श्रीलंका में, कौन सी जाति जनजाति आ गई भाई? तमिल, और तमिल वाला इशू है वहाँ पे, जो हमारे यहाँ से तमिलियंस हैं उनको बराबर अधिकार मिले। कच्चा दीपू द्वीप, बिल्कुल हमने दे दिया था। बांग्लादेश में हमने भी तो दिया था, बांग्लादेश को भी तो हमने दो इंक्लेव दिए थे।
तो सर, बांग्लादेश में दोनों ने, हाँ, दो एनक्लेव वेरी दिए हैं वेरी हमने तो। इस हाँ हाँ, तो बांग्लादेश को भी हमने दिया। तो पॉइंट यही है कि आपको थोड़ा ब्रॉड रखना है। दोनों बहुत अच्छे आंसर है। आई थिंक एक बार फिर से देख लेना। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द पीडीएफ। आई थिंक सो करंट अफेयर्स के एंगल को जैसे ये लेके आए हिंदी में, आई थिंक दैट वाज टू बी अप्रिशिएटेड। तो वो ले आए कि भाई बांग्लादेश से ऐसा है तो प्रेजेंट उसमें, तो आई थिंक ठीक है, फ्लो आ रहा है। आप एक बार हम्म। इंग्लिश में जो लिखा था वो आप देख लीजिए, आपने जो हिंदी में लिखा था और वो देख लेंगे। सो बोथ ऑफ यू जी कैन कंक्लूड क्विकली। सही है कि थोड़ा जो अभी एक तो रियल लाइफ में हो रहा है, प्रैक्टिकली उसको सिंपली लेके आना, और पॉजिटिव ओरिएंटेशन सेकेंड हाफ में की जो पॉजिटिव हाँ एलिमेंट्स हैं देखिए, जो, हाँ, देखिए वो हो नेगेटिव, रहा है। देखिए मैंने आपको तो शुरू से बताया नेगेटिव क्या है। सबसे नेगेटिव, अगर आप ये भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हम्म। आप बंधे हुए हो कि आप ये भाषा ऐसे नहीं बोल सकते, आप अपनी व्यथा लिख सकते हो। हम्म। व्यथा बताइए, मतलब इन द सेंस कि यू आर फोर्स टू राइट दैट चेंजेस इज रिक्वायर्ड एंड चेंज विल बी डन लाइक दिस। हम्म। बट यू कांट रियली जस्ट ब्लास्ट आउट, नहीं हो सकते आप कि यार हाँ जी, कुछ नहीं हाँ। है, सब गड़बड़ है। ये हाँ। नहीं कर सकते। ये समझना समझना बहुत जरूरी है। हम्म। आप कोई, भाई नोएडा के भी कोई सीईओ है ही ना। जी। अब नोएडा में जैसे आज ही बात हुई है कि सोलर पैनल्स का हम्म। मैन्युफैक्चरिंग भी हो, हाँ तगड़ा जी। इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हाँ। तो बस और वो भी यमुना एक्सप्रेस डेवलपमेंट अथॉरिटी का। हम्म। बड़ी बात है, चीजें आ रही हैं। ग्रेटर हाँ नोएडा तो जी। खत्म ही हो रहा है, नहीं होता। हम्म। तो जेवर आ रहा है, हाँ एयरपोर्ट आ रहा जी। है, तो वो भी स्विट्जरलैंड की कंपनी बना रही है, तो बड़ी बात हाँ नहीं है। जी सर। तो थोड़ा सा देखिए, आप मेहनत देखिए, सबकी भारत की मेहनत देखिए, चीजें देखिए, तो परेशान तो होते हैं हम, क्योंकि हम उसी भारत का हिस्सा हैं। लेकिन जब थोड़ा इंस्पायर्ड राइटिंग करेंगे, हम्म। लेकिन वो बहुत सिंपल होगी, एग्जामिनर विल हाँ। बी फोर्स टू हैव अ लुक एट इट। हाँ जी। It must be inspired, it must be very simple, it must not हम्म। be carried away by by just by jargon नहीं चाहिए, बहुत हम्म। इमोशन। तो अभी भी भारत की बांग्लादेश के साथ नीति क्या है? भारत बंगला आज ही सत्यजीत रे के घर को तोड़ा जा रहा है बांग्लादेश में। हम्म। तो इंडिया ने बोला है कि वी आर रेडी टू सपोर्ट। आप जी। हमसे मदद मांगिए, क्या चाहिए आपको, बस घर को मत तोड़ो, ये प्यार से बोल रहे हैं। अभी तो वो सारे सिंबल्स, वो सारा जो जेस्चर्स हैं जो डेमोक्रेसी को या इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को दिखा रहे हैं, उनको खत्म करने की बात है। हम्म। पाकिस्तान से पहली बार कार्गो आने लगे हैं। हाँ पाकिस्तान से जी। पहली बार बांग्लादेश के रिलेशन नॉर्मल होने लगे हैं। हम्म। तो इंडिया ऑलरेडी अब टू फ्रंट के ऊपर जूझ रहा है। हाँ जी। एक फ्रंट के ऊपर तो है ही पाकिस्तान और चाइना, इधर भी पाकिस्तान और चाइना, समझे? हम्म। तो हाँ जी इसी सर। बात को आप एकदम सिंपल, जैसे आपको करेक्ट वोकैबुलरी से बताना है, ऐसे होना चाहिए। दिव्या, आप बोलिए। सर इंट्रोडक्शन और बाकी पैराग्राफ इतना बड़ा नहीं करना, ब्रेक करके लिखना है सर, इंग्लिश वाले में जैसे होते हैं सब हाँ, सब। मतलब हिंदी में समझ आ रहा है, बढ़िया, लेकिन आप छोटे टुकड़े करोगे तो एग्जाम में पढ़ 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 ऐसे पड़ेगा, नंबर आ जाएंगे। ये सर। So thank you very much to one and all for being part of understanding, and you are enjoying and watching it. Mind it that you have to do exercise on your own. Mind it, there is no shortcut. It's always feel good factor is there when we listen something, but then always remember there is a hell lot of things going in the back of it, and that is what if you do, you can get success, and that is what we do for all of you. Thank you very much for being part of Ansarkari.